ہیلی کاپٹر سے وہ قصبہ کاگل اتر گئے تھے اور وہاں سے جیپوں میں آگے روانہ ہوئے تھے۔ ایک جیپ میں سوراب اور شیرداد تھے، جبکہ دوسری جیپ میں شیرداد کے 4 ساتھی موجود تھے۔ وہ ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو کر روانہ ہوئے تھے۔ قصبہ کاگل سے قصبہ ہندوئی 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ باس، شیرداد نے سوراب کو مخاطب کیا۔ کیا بات ہے؟ سوراب نے ایک موڑ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ وہ لوگ جنگل میں کس جگہ پر ہیں؟ شیرداد نے پوچھا۔ ندی کے کنارے پر، سوراب نے جواب دیا۔ اور سرحدی محافظ؟ شیرداد نے پوچھا۔ وہ بھی ندی کے کنارے جنگل کے سرے پر گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، سوراب نے کہا۔ ہم کس طرف سے ان تک پہنچیں گے؟ شیرداد نے پوچھا۔ جنگل کے پہلو سے، سوراب نے کہا۔ اس کے لیے ہمیں پیدل چلنا پڑے گا، شیرداد نے کہا۔ ہاں، سوراب نے کہا۔ راستے میں دلدل بھی ہے باس، آپ کو معلوم ہے، شیرداد نے کہا۔ اسی لیے وہ راستہ اختیار کریں گے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اس طرف سے آ سکتا ہے، سوراب نے کہا۔ ایک بات اور ہے باس، شیرداد نے کہا۔ وہ کیا؟ سوراب نے تاریکی میں شگاف ڈالتی ہوئی جیپ کی ہیڈ لائٹس کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ جیپیں کہاں چھوڑی جائیں گی؟ شیرداد نے کہا۔ جنگل کے سرے پر۔ کیوں؟ سوراب نے کہا۔ وہاں تک سرحدی محافظ پہنچ گئے تو، شیرداد نے کہا۔ میں ایک آدھ مرتبہ ہی اس طرف آیا ہوں، جبکہ تم متعدد مرتبہ آ چکے ہو، سوراب نے کہا۔ اسی لیے پوچھا ہے باس، شیرداد نے کہا۔ پھر تم ہی بتاؤ جیپیں کہاں چھوڑی جائیں، سوراب نے کہا۔ جنگل کے اندر کئی جگہ مٹی کے اونچے اونچے ٹیلے ہیں جن پر گھاس اگی ہوئی ہے، جیپیں وہاں چھوڑی جا سکتی ہیں، شیرداد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، میں نے اسی لیے تمہیں ساتھ لیا تھا کہ تم اس علاقے سے کسی حد تک واقف ہو اور رہنمائی کر سکو گے، سوراب نے کہا۔ یس باس، تھینک یو باس، شیرداد نے کہا۔ سوراب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے نظریں سامنے کی جانب جما دی۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ کئی برسوں سے X2 کے لیے فارن ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ناٹران کے ساتھ ساتھ چیف X2 کا یہ دوسرا سیٹ اپ تھا۔ ناٹران چونکہ ان دنوں شدید علیل تھا، اس لیے چیف X2 نے سوراب سیٹ اپ کو آگے لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے X2 کو ایک ایسی اطلاع دی تھی جس کے نتیجے میں X2 نے عمران اور اس کی ٹیم کو یہاں بھیجا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی جس اطلاع پر یہاں آ رہے تھے وہ اطلاع یہ تھی کہ اس کافرستان نے پاک ایشیا کے خلاف پہاڑی علاقے میں نیا اور جدید ترین میزائل اسٹیشن بنایا تھا۔ یہ میزائل اسٹیشن کافرستان نے روسیا کے اشتراک سے بنایا تھا۔ اس میزائل اسٹیشن میں اتنی تعداد میں طاقتور میزائل نصب کیے گئے تھے کہ پاک ایشیا کا ہر بڑا شہر ان میزائلوں کی زد میں آ گیا تھا، اور وہ اس میزائل اسٹیشن سے مسلسل میزائل فائر کر کے پاک ایشیا کے ہر شہر کو تباہ و برباد کر سکتے تھے۔ سوراب کا اصل نام کچھ اور تھا، لیکن وہ کافرستان میں سوراب کے نام سے ہی رہ رہا تھا، اور اس کے سوراب نام کا انڈر ورلڈ میں خاصا رعب اور دبدبا تھا۔ سوراب کے چند مخصوص ساتھی تھے جو اس کی ٹیم کا حصہ تھے، وہ بھی سوراب کی طرح X2 کے لیے ہی کام کرتے تھے۔ سوراب نے X2 کو جب اس میزائل اسٹیشن کے بارے میں اطلاع دی جس کا کوڈ نام ٹاپ اسپاٹ رکھا گیا تھا، تو X2 نے اسے بتایا کہ وہ عمران کی سرکردگی میں ٹیم کو کافرستان بھیج رہا ہے۔ اسے نہ صرف عمران اور اس کے ساتھیوں کی رہنمائی کرنی ہوگی بلکہ انہیں ہر قسم کی سہولتیں بھی بہم پہنچانی ہوگی، اور جس قسم کا سامان اور اسلحہ کی ان کو ضرورت ہوگی وہ بھی اسے مہیا کرنا ہوگا۔ چند روز بعد X2 نے کال کر کے اسے اطلاع دی کہ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹاپ اسپاٹ تباہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور اس نے سرحد کراس کر لی ہے، اور وہ لوگ قصبہ ہندوئی اور کاگل سے ہوتے ہوئے دارالحکومت پہنچیں گے۔ سوراب نے فوری طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کو ریسیو کرنے اور ان کے لیے رہائش اور دوسرے انتظامات کرنے شروع کر دیے۔ اطلاع کے مطابق عمران کے ساتھ 8 افراد تھے۔ سوراب ان کے نام تو نہیں جانتا تھا، لیکن چیف نے اسے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ ایک لڑکی ہے جس کا نام جولیا ہے۔ جب وہ کافرستان پہنچیں گے تو عمران اپنے ساتھیوں کا خود اس سے تعارف کرا دے گا۔ سوراب اس انتظار میں تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی سرحد کراس کر کے محفوظ طریقے سے دارالحکومت پہنچ جائیں گے، مگر آج اسے دوسری ہی اطلاع ملی۔ یہ اطلاع اس کے سیکرٹ ہیڈ کوارٹر میں عمران نے ٹرانسمیٹر پر دی تھی کہ وہ قصبہ ہندوئی کے جنگلات میں گر چکے ہیں اور انہیں ان کی مدد کی ضرورت ہے، تو سوراب فوری طور پر ان کی مدد کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ جیپ دوڑتی رہی اور سوراب اپنے خیالوں کی دنیا میں کھویا رہا۔ پھر وہ اس وقت ہی چونکا تھا جب شیرداد نے اسے ٹوکا تھا۔
बॉस हम पहुंच गए हैं, शेरदाद ने कहा। ओह, क्या कहा तुमने? सौराब ने चौंक कर कहा। हम पहुंच गए हैं, शेरदाद ने अपना जुमला दोहराया। कौन है? लेकिन जंगल तो अभी दूर है, सौराब ने सामने देखते हुए कहा। जी हाँ, ये सड़क आगे जाकर छावनी की जानिब मुड़ जाएगी और हमें कच्चे रास्ते पर जाना है, शेरदाद ने कहा। ठीक है, जहाँ से कच्चा रास्ता इख्तियार करना है बता देना, सौराब ने सर हिलाते हुए कहा। बस वो दूर जो शेरदाद का जुमला अधूरा ही रह गया और सौराब ने बड़ी तेजी से हेडलाइट्स बुझा दिए। उसके साथ ही एक भी लाइट से पीछे आने वाली जीप को सिग्नल दिया और रफ्तार कम करता चला गया। पीछे आने वाली जीप की रफ्तार भी कम होती चली गई और उसकी हेडलाइट्स भी बुझ गई और साथ ही जीपें रुक गई और वो आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में देखने और सुनने की कोशिश करने लगे। उनके चौंकने और रुकने का सबब मशीन गन्नों के चलने की आवाज़ें थी। ये आवाज़ें ज़्यादा दूर से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे करीब ही कहीं दो पार्टियों में फायरिंग का तबादला हो रहा है। कहीं उनका टकराव तो नहीं हो गया बॉस? शेरदाद ने कहा। हो सकता है, सौराब ने कहा। ऐसी सूरत में हमारा उन तक पहुंचना मुश्किल होगा बॉस, शेरदाद ने कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर इन लोगों को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। हम हर सूरत उनकी मदद करेंगे, सौराब ने कहा। पहले हमें सूरत हाल का पता करना चाहिए बॉस, शेरदाद ने कहा। उन्हें एक मिनट खामोश हो जाओ, सौराब ने कहा और मशीन गन्नों की आवाज़ें सुनने लगा। फिर उसने इस तरह सर हिलाया जैसे कोई बात समझ में आ गई हो। क्या हुआ बॉस? शेरदाद ने पूछा। ये आवाज़ें काफ़ी दूर की हैं, सौराब ने कहा। मगर लग तो करीब की रही हैं, शेरदाद ने कहा। हाँ, हवा का रुख हमारी जानिब है और खुला इलाका है, इसलिए ऐसा लग रहा है, सौराब ने कहा। फिर तो हमें चलना चाहिए, शेरदाद ने कहा। हाँ, सौराब ने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस बार उसने हेडलाइट्स रोशन नहीं की थी, बल्कि वो लाइट जलाई थी जो जीप के निचले हिस्से में लगी हुई थी और जिसकी रोशनी इस तरह ज़मीन पर पड़ी थी कि दूर से नज़र नहीं आ सकती थी, जबकि जीप चलाने वाला उसकी रोशनी में 10-15 गज दूर तक देख सकता था। ये लाइट सौराब की हर गाड़ी में खसूसी तौर पर लगाई गई थी और ये ख़ास तौर पर उस वक्त काम आती थी जब स्मगलिंग का माल इधर से उधर किया जा रहा होता था। बस अब कच्चे में उतारने बॉस, शेरदाद ने करीब से गुजरने वाले एक बोर्ड को देखने के बाद कहा। ये बोर्ड उस रास्ते पर सफ़र करने वालों के लिए था। उसके ज़रिए बताया गया था कि इस तरफ से जंगल में दाखिला ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ दलदलें फैली हुई हैं। अब तुम ड्राइविंग करो, सौराब ने जीप रोकते हुए कहा। फिर वो नीचे उतरा और घूमकर दूसरी तरफ शेरदाद की जगह आ बैठा, जबकि शेरदाद ने स्टीयरिंग संभाल लिया था और जीप फिर हरकत में आ गई थी। शेरदाद ने रफ्तार कम रखी थी और बड़ी होशियारी से जीप ड्राइव कर रहा था। 20-25 मिनट के सफर के बाद जीपें जहां रुकी वहां इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे टीले फैले हुए थे और उन पर खुदरो घास और पौधे उगे हुए थे। वो जीपों से उतर आए और सामान के बैग कांधों पर डाल दिए और मशीन गनें हाथों में संभाल ली और एक जगह जमा हो गए। अब क्या हुक्म है बॉस? शेरदाद ने पूछा। आगे जाने से पहले मैं एक बार इमरान साहब से राब्ता कायम करने की कोशिश करता हूँ, सौराब ने कहा। फिर ट्रांसमीटर निकालकर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा और फिर उसने ट्रांसमीटर अपने मुंह के करीब किया और दूसरी तरफ मुसलसल कॉल देने लगा। SS कॉलिंग यू, हेलो हेलो, ओवर, उसने दूसरी तरफ से मुसलसल कॉल देते हुए कहा। यस प्रिंस अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी तो सौराब के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। उसने इमरान की आवाज़ पहचान ली थी। तो आप पहुंच गए हैं, ओवर, सौराब ने मुस्कुरा कर कहा। मैं तो पहुंच गया हूं, लेकिन तुम कहां से बोल रहे हो मिस्टर स्मगलर, ओवर, इमरान की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। आपके करीब ही हूं जनाब, ओवर, सौराब ने पूछा। क्या तुम शाम तक पहुंच गए हो, ओवर, इमरान ने पूछा। जी हाँ, ओवर, सौराब ने पूछा। शाम के मुंह के पास हो या कुछ फासले पर, ओवर, इमरान ने पूछा। हम कुछ फासले पर हैं जनाब, ओवर, सौराब ने कहा। बस तो शाम के मुंह तक आ जाओ, मोहतात रहना, यहाँ आदमखोर चिमटे फैले हुए हैं, ओवर, इमरान ने कहा। आप फिक्र न करें, हमें आदमखोर चिमटों की मौजूदगी का इल्म है जनाब, ओवर, सौराब ने कहा। वो समझ गया था कि इशारा वहाँ फैले हुए सरहदी मुहाफ़ज़ों की जानिब है। जब शाम के मुंह तक आ जाओ तो उल्लू बन जाना ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं, ओवर, इमरान ने कहा। उल्लू? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, ओवर, सौराब ने हैरत से पूछा।
अरे उल्लू का मतलब नहीं समझते या तुम्हें उल्लू बनना नहीं आता? ओवर, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, मैं समझ गया। ठीक है जनाब, ओवर, सोराब ने समझ जाने वाले अंदाज में कहा। कितनी देर लगेगी उल्लू बनने में? ओवर, इमरान ने कहा। 10-15 मिनट, ओवर, सोराब ने जवाब में कहा। सोच लो सुबह होने वाली है जबकि उल्लू रात का शहजादा है, ऐसा ना हो कि बोलने से पहले ही रोशनी हो जाए। ओवर, इमरान ने कहा। बेफिक्र रहें जनाब, ओवर, सोराब ने कहा। बस तो फिर आकर जल्द से जल्द उल्लू बनो, मुझे उल्लू की आवाज़ सुनने में काफ़ी देर हो गई है। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और रब्ता ख़त्म कर दिया। सोराब ने भी मुस्कुराते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये इमरान साहब आपको उल्लू बनने का क्या कह रहे थे जनाब? शहजाद ने हैरत भरे लहजे में कहा, जो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उल्लू बनने का नहीं, वो मुझे उल्लू की आवाज़ निकालने का कह रहे थे। नॉनसेंस, सोराब ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया तो शहजाद ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अब हमें किस तरफ जाना है? शहजाद ने पूछा। हमें बरसाती नदी के किनारे पर पहुंचना है, सोराब ने जवाब देते हुए कहा। वो तो खासी दूर है बॉस, शहजाद ने कहा। चलो गाइड करो, हमें सुबह होने से पहले उन्हें लेकर यहाँ तक आना है और यहाँ से रवाना होना है, सोराब ने कहा। यस बॉस, आइए, शहजाद ने कहा और वो एक हाथ में मशीन गन और दूसरे हाथ में टॉर्च संभाले आगे बढ़ने लगा। उनके कदम बड़ी तेजी से उठ रहे थे। शहजाद उनके टेढ़े मेढ़े रास्तों पर घुमाता फिराता हुआ ले जा रहा था और ये उस वजह से था कि यहाँ दलदल फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद अचानक शहजाद रुक गया। क्या हुआ? सोराब ने शहजाद को रुकते देखकर पूछा। आपने आवाज नहीं सुनी? शहजाद ने कहा। हाँ सुनी है, ये किसी भेड़िए की आवाज है, सोराब ने कहा। आपको शायद इल्म नहीं है बॉस कि यहाँ खूंखार भेड़िए वॉल की शक्ल में रहते हैं, शहजाद ने कहा। हाँ मगर ये एक भेड़िए की आवाज़ है और ऐसा लग रहा है जैसे वो बीमार हो या करीबुल मर्ग हो। तुम बेफिक्र होकर चलो, सोराब ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। यस बॉस, शहजाद ने कहा और फिर वो आगे बढ़ने लगे। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक वो सब बुरी तरह उछल पड़े। कोई भेड़िया उनसे सिर्फ चंद कदम के फासले पर चीखा था। बेसाख्ता उनकी टार्चों की रोशनियां आवाज की सिमत उठ गईं और फिर वो हैरत ज़दा रह गए। सामने एक दलदल थी जिसमें एक भेड़िया गर्दन तक धंसा हुआ दिखाई दे रहा था। दलदल के किनारे पर एक और भेड़िया मौजूद था जो दलदल में फंसे हुए भेड़िए को उसकी दुम से पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में वो खुद भी दलदल में फंस चुका था और उसका एहसास होते ही वो चीखा था। उनके देखते ही देखते भेड़िए की गर्दन भी दलदल में गायब हो गई और दूसरे भेड़िए का निसफ धड़ दलदल में फंस गया। वो सब भेड़ियों को दलदल में गर्क होते देखने लगे। चलो देर हो रही है, सोराब ने उड़ा कर कहा। यस बॉस, शहजाद ने कहा और वो तेजी से कदम बढ़ाने लगे। फिर शायद चलते हुए उन्हें कुछ ही देर हुई होगी कि वो सब एक बार फिर रुकने पर मजबूर हो गए। दूर खासे फासले पर उन्हें रोशनियां नजर आ रही थी। ये टार्चों की रोशनियां थीं और हरकत कर रही थीं। शायद हम पहुंच गए, सोराब ने कहा। यस बॉस, 1-1.5 फरलांग आगे नदी का किनारा है, कहीं तो आगे चले जाएं, शहजाद ने कहा। नहीं, पहले मुझे उनसे बात कर लेने दो, सोराब ने कहा। ओके बॉस, शहजाद ने कहा। सोराब ने एक बार फिर ट्रांसमीटर ऑन किया और उसे मुंह के करीब कर दिया। एस कॉलिंग यू, हेलो हेलो ओवर, उसने दूसरी तरफ मुसलसल कॉल देते हुए कहा। यस प्रिंस अटेंडिंग यू ओवर, फौरन इमरान ने कॉल रिसीव करते हुए जवाब दिया। हम सांप के सर से सिर्फ 1 फरलांग के फासले पर हैं, ओवर, कोड वर्ड्स के तबादले के बाद सोराब ने कहा था। बस तो उल्लू बनने में क्या हर्ज है, ओवर, इमरान ने कहा। ठीक है, सोराब ने कहा। फिर उसने ट्रांसमीटर शहजाद को पकड़ाया और मुंह पर दोनों हाथ रखे और एक लम्हे बाद ही जंगल उल्लू की तेज आवाज से गूंज उठा। फिर अभी सोराब के मुंह से निकलने वाली उल्लू की तेज आवाज मालूम भी नहीं हुई थी कि कहीं करीब ही से दूसरा उल्लू चीखा तो सोराब ने शहजाद से ट्रांसमीटर वापस ले लिया। आप हमसे बहुत करीब हैं, ओवर, सोराब ने ट्रांसमीटर पर कहा। हाँ अब तुम एक काम करो, ओवर, इमरान ने कहा। फरमाएं, क्या काम करना है मुझे, ओवर, सोराब ने पूछा।
तुम जहां मौजूद हो वहां टॉर्च की रोशनी जमीन पर डालकर दायरे की शक्ल में घुमाना शुरू कर दो, सिर्फ चंद लम्हों के लिए। मतलब समझ रहे हो ना? इमरान ने कहा। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ, सोहराब ने कहा और फौरन ही टॉर्च रोशन की और दायरे की शक्ल में उसकी रोशनी जमीन पर डालकर फौरन टॉर्च बुझा दी। गुड, हम आ रहे हैं, ओवर। ट्रांसमीटर पर इमरान की आवाज सुनाई दी। जल्दी करें, हमें सुबह होने से पहले यहाँ से वापस भी जाना है, ओवर, सोहराब ने कहा। मैं जानता हूँ, ओवर, इमरान ने कहा और खामोशी छा गई। फिर ट्रांसमीटर से पत्तों की खड़खड़ाहट सी सुनाई देने लगी, कभी कभी तेज तेज सांसों की आवाज भी सुनाई दे जाती थी। अचानक सोहराब और शेरदाद और उसके साथी चौंक पड़े। करीब ही से आहटें सुनाई दी थीं। ऐसा लगा था जैसे कुछ लोग उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हों। बेसाख्ता उनकी गन्नों के रुख आवाज की समत हो गए और उंगलियां ट्रैगरों पर जम गई। फायर मत करना मिस्टर स्मगलर, ओवर। ट्रांसमीटर से इमरान की आवाज सुनाई दी। तो ये आप लोग हैं, ओवर, सोहराब ने कहा। हाँ, ओवर, इमरान ने जवाब दिया, लेकिन इस बार आवाज ट्रांसमीटर से नहीं, कुछ फासले से सुनाई दी थी। फिर आने वाले करीब आ गए। सोहराब, एक आवाज आई। इमरान साहब, सोहराब ने कहा और एक आदमी उसके करीब आ गया। दोनों ने एक दूसरे को पहचानने में देर नहीं लगाई थी। इमरान के इशारे पर उसके साथी भी तारीकी से निकलकर उनके पास आ गए। उन सब ने एक दूसरे से सलाम दुआ की और फिर वो एक दूसरे से घुल मिल गए। उल्लुओं की सोबत में कितने दिन रहे हो? इमरान ने सोहराब के शाने को थपकते हुए पूछा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, सोहराब ने चौंक कर कहा। बहुत अच्छी आवाज निकाली थी उल्लू की तुमने, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सोहराब बेख्तियार हंस पड़ा। वैसे अच्छी तो आपने उल्लू की आवाज निकाली थी। क्या आपने भी उल्लुओं की सोबत में रहकर ये आवाज सीखी थी? सोहराब ने हंसते हुए कहा तो इमरान भी हंस पड़ा। हो सकता है उल्लुओं ने मेरी सोबत में रहकर ही इस तरह बोलना सीखा हो, इमरान ने जवाब दिया तो सोहराब जो खिलखिलाकर हंसना चाहता था उसने फौरन मुंह पर हाथ रख लिया। बॉस, वक्त जाया मत करें, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, शेरदाद ने कहा। ओह हाँ, चलें इमरान साहब, हमें सुबह की रोशनी होने से पहले उस इलाके से निकलना है, सोहराब ने इमरान से कहा। हाँ तो चलो, मैंने तुम्हें कब रोका है, इमरान ने कहा और वो आगे बढ़ने लगा। हमारे कदमों से कदम मिलाकर चलें जनाब, क्योंकि यहाँ जगह जगह पर दलदलें फैली हुई हैं, सोहराब ने कहा। ठीक है, इमरान ने कहा और वो तेजी से कदम बढ़ाने लगे। फिर वो टीलों के करीब पहुंचे ही थे कि बुरी तरह चौंक पड़े। जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे, एक करख्त आवाज वहां गूंजी और दूसरे लम्हे यकलख्त वो इलाका तेज रोशनी से मुनव्वर हो गया। वो सब रोशनी में नहा गए। किसी सर्च लाइट के दायरे ने उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो दुश्मन के नरगे में फंस चुके थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।